Okay, I think recording has also started. So हमारा एजेंडा है to learn about what all different components of branding which are typically deployed when we go out branding a particular shop. So हम पूरे पूरे के पूरी चीज को दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे. सबसे पहले we will talk about exterior branding elements and then we'll talk about interior branding elements. So and for both the items we will also pick up some commercial reference that how you should go about drafting commercials and assessing him while presenting him with a cost proposal. So सबसे पहले we will talk about some exterior branding elements. So all these documents that I'll be referring to are already uploaded in this folder. The sales RB folder is shared with everybody on this call. उसके अंदर एक commercial reference folder है. उसके अंदर इस 4 डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगी. एक कमर्शियल मास्टर है. I'll just give you a glimpse of this. This commercial master basically contains different type of elements, all the element categories, उनकी description क्या है और standard market price क्या है और standard vendor price क्या है, ताकि आप easily ये quote कर पाओ इसको. Then we have a commercial document for quick signage. You can ignore this one as of now. Then there's one document that is RB signage guide. This guide basically talk about 3 major component of exterior branding and their relative advantage and disadvantage. So this is some technical information which will help you set up some rapport with the customer. So, and the last document that we have is, it's still getting uploaded. It's RB signage types. I'll just show you a glimpse of this here. So in this document is again about exterior branding components. So and mainly about the signages, because it is one of the major cost element for any shop. So it talks about what are different type of signages, what are their specifications, and how their price would change as per their specification. Right? We have mentioned couple of different types which are generally in trend. So we'll talk about these. Okay. So starting with the सबसे जो simple वाला portion है, the exterior branding के ऊपर we know 3 तरह के signage, मतलब signage लगते हैं, right? Signage जो when you are facing the shop, जो सबसे ऊपर जो top में जो board रहता है, I think everybody understand. तो मैं चलो ये basic references हटाता हूँ and we'll directly come to the point. तो सबसे जो simple variant होता है signage का, बेसिक पे भी थोड़ा कर दो. आप में एक थोड़ा रुकी भी है, नया बंदा भी है, बॉबी सिंह, थोड़ा मेरे को हेल्प हो जाएगी. ओके, हाँ, ऑलराइट. सो यहाँ पे when we talk about signages of branding a particular shop, so there are multiple variants और हर एक सेक्टर अपने उस टच पॉइंट के कितना स्ट्रेटेजिक है, उस टच पॉइंट के ऊपर कितना उसको माइलेज मिल रहा है, उसके बेसिस पे डिसाइड करता है कि उसको किस टाइप का साइनेज लगाना है. फॉर एग्जांपल थिंक अबाउट सीमेंट इंडस्ट्री. तो सीमेंट इज अ वेरी लो मार्जिन बिजनेस. सीमेंट के जो डीलर होते हैं वो टिपिकली वॉल्यूम के ऊपर राइड करते हैं और सीमेंट सेक्टर में ब्रांड लॉयल्टी बहुत ज्यादा होती नहीं है. मेजोरिटी ऑफ सेल्स इंस्टीट्यूशंस के थ्रू होती है या B2B चैनल पे होती है. तो दे स्टिल वांट टू ब्रांड देयर डीलर शॉप बट दे कैन नॉट स्पेंड अ हेफ्टी सम. सो दैट इज व्हाई सीमेंट सेक्टर में आप टिपिकल बिहेवियर देखोगे तो डीलर साइड के ऊपर एक फ्लेक्स बोर्ड लगा होता है जो कि ना तो लिट होता है ना उसके अंदर बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं. फ्लेक्स बोर्ड का सिंपल मतलब है एक फ्लेक्स है जिसको आपने प्रिंट किया हुआ है और उसको आयरन पाइप के ऊपर पेस्ट किया हुआ है. तो जो आपने देखा होगा कि फ्लेक्स एकदम फ्लैटिश अपीयरेंस रहती है फ्लेक्स की. एंड इफ यू एवर वंडर्ड कि यार इतना फ्लैट कैसे हो सकता है, अगर क्योंकि फ्लेक्स आप देखोगे इट्स लाइक अ प्लास्टिक की पेपर, लेकिन when it is put up on whenever it is put up in form of a signage, it is always free of wrinkles. तो इसके पीछे जो टेक्निक यूज करते हैं वो पेस्टिंग मेथड इसको बोलते हैं हम लोग, कि फ्लेक्स को आयरन के एक पोर्शन पे, मतलब एक कॉर्नर से स्टार्ट किया जाता है, वहां पे उस कॉर्नर पे एक स्पेशल तरह का ग्लू होता है जिसको बॉन्ड भी बोलते हैं. बॉन्ड को लगा दिया जाता है. फ्लेक्स को वहां पे जैसे टच करते हो आप उस बॉन्ड पे और आयरन सरफेस पे, वो एकदम से स्ट्रॉन्ग होल्ड क्रिएट कर लेता है. इट डज नॉट रिक्वायर मच टाइम टू गेट फिक्सेटेड ओवर देयर. और उसके बाद में आप उसको स्ट्रेच कर करके और सारी जगह पे बॉन्ड से लगा करके उसको पेस्ट करते हो और इस तरह से फ्लेक्स बोर्ड तैयार होता है. ये सबसे सिंपल वेरिएंट है किसी भी तरह के साइनेज का. ठीक है. इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन होती है, क्योंकि आयरन तो आयरन है, मतलब
मैक्सिमम आप ये कर सकते हो कि जो पाइप है उसकी थिकनेस बढ़ा सकते हो, उसका जो गेज है वो कम कर सकते हो, एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। दूसरी चीज आप कर सकते हो आयरन के साथ में, यू कैन प्रोबेबली पाउडर कोट इट, और यू कैन यूज स्टेनलेस स्टील। I think my internet connection has been unstable. Now, am I audible now? Hello? Amit, Hello? your voice is Yes, yes. Am I audible now? Hello, guys. yes. There's something wrong with my internet connection today. Am I audible now? Hello? Hello? Hello. Yeah. Yes. सुनाई दे रही क्या बॉबी आवाज? Yes, Amit. ओके, ठीक है, so we'll continue. तो जो फ्लेक्स बोर्ड रहता है तो उसके अंदर स्पेसिफिकेशन में सिर्फ दो कंपोनेंट है, एक आयरन है और फ्लेक्स है। तो आप आयरन की थिकनेस कम ज्यादा कर सकते हो, उसको पाउडर कोट कर सकते हो। हेलो? हेलो गाइस, आवाज? हेलो। हाँ रोबिन, मुझे आ रही है तुम्हारी आवाज? आ रही, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही। ठीक है, तो मैं मेरे को आ रही है। हाँ, ठीक है। ये बताओ मेरे को कि फ्लेक्स बोर्ड के ऊपर स्टेनलेस स्टील का आयरन पीछे का बैक फ्रेम है, स्टेनलेस स्टील में यूज करने का सेंस बनता है क्या? कैन वी कस्टमर की यार बहुत अच्छा चलेगा, इसको स्टेनलेस स्टील में लगाओ, रस्टिंग नहीं होगा। पता नहीं, मेरे हिसाब से तो एमएस फ्रेम के ऊपर भी अगर हम लोग पेंट वो पाउडर कोटेड उसको कर देते हैं, उसके बाद बेसिकली स्टेनलेस स्टील में क्या होता है ना, इसमें जब हम इसको फिक्स करेंगे बॉन्ड के साथ, तो वैसे भी स्टेनलेस स्टील थोड़ा सा स्लिपरी होता है उसका आउटर सरफेस। तो आई थिंक एमएस फ्रेम जो है वो उसके लेट्स से ऊपर कि अगर हम स्लिपरी इसको वाला फिक्स कर, कंस्ट्रेंट नहीं है, लेट्स से कि स्लिपरी वाला कंस्ट्रेंट इज डेल्ट विद, वो बॉन्ड वो डील कर लेता है, वो बना लेता है वहाँ पे। हाँ हाँ उसके अलावा कैन यू थिंक सर ऑफ वेट के लिए, हाँ हाँ, सर वेट रीजन है ना, क्या काफी भारी हो जाता है। स्टेनलेस स्टील का स्ट्रक्चर काफी भारी भी हो जाता है। अच्छा चलो ठीक है, दोनों ही रीजन मतलब जस्टिफाइड है, बट कोर रीजन समझो कि कोई बंदा फ्लेक्स बोर्ड क्यों लगाता है, क्योंकि उसको वहां पे ज्यादा खर्चा नहीं करना। बजट कम होता है। हाँ हाँ, बजट कम हाँ। होता है। ठीक है, तो वो स्टेनलेस स्टील नहीं लगाएगा वहां पे। अगर उसको स्टेनलेस स्टील जितने खर्चे करने हैं, उसको इस टाइप की चीजें करनी है, तो वो जीएसबी लगवा लेगा थोड़ा सस्ता वाला। ठीक हाँ है, तो अंडरस्टैंड फ्लेक्स बोर्ड्स आर मेक शिफ्ट अरेंजमेंट, वो वहां पे लगाए जाते हैं जहाँ पे ब्रांड को पता है मैं यहाँ पे ये चीज टेम्परेरी लगा रहा हूँ, कल को डीलर ने तोड़ भी दिया तो मुझे कोई मतलब नहीं है। कोई भी ब्रांड किसी एक्सक्लूसिव ब्रांड शॉप पे आप कभी भी फ्लेक्स बोर्ड नहीं देखोगे। तो दीज आर मेक शिफ्ट अरेंजमेंट, दीज आर जनरली यूज्ड बाय एफएमसीजी कंपनीज। एफएमसीजी कंपनी जैसे कोका कोला है या पेप्सी है, वो जो ढाबों के ऊपर ब्रांडिंग करते हैं, उनको पता है ढाबे वाले का जब जो मन करेगा वो करेगा, वो कोई कंट्रोल नहीं एक्सरसाइज कर सकते। आज वो कोका कोला का कल पेप्सी वालों ने लगाया तो पेप्सी वाले अपना लगा देंगे, वो थोड़े दिन में टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा, वो बंदा रिपेयर भी नहीं करने वाला। तो ऐसी जगहों पे पतंजलि जो अपने इधर उधर जो टांग देता है, क्योंकि पतंजलि एफएमसीजी सेक्टर में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि 2 लाख शॉप के ऊपर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है, 5 लाख शॉप के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है। अब 5 लाख जैसा रुपए सैपसल भी की, करता है ना। हाँ सैसोल भी सारे ही ब्रांड करते हैं, गल्फ भी करता है। जो इंपॉर्टेंट शॉप होती है वहां पे जहाँ पे आपको पता है कि यार इस शॉप से मैं महीने का 1 लाख 1.5 लाख 1 लाख 1.5 लाख का बिजनेस निकाल पाता हूँ, तो वहां पे बंदा सोचेगा चलो ठीक है, साल भर का 30,000 40,000 स्पेंड कर देता हूँ एक अच्छे बोर्ड में। लेकिन जहाँ पे पता है कि यार ये मेरा साल भर का बिजनेस ही मेरा यहाँ से 20,000 का होता है, तो मैं बोर्ड पे 1,000 1,500 से ज्यादा थोड़ी ना स्पेंड करूंगा। तो ऐसे बहुत जो फ्लेक्स बोर्ड होता है वो हमेशा कमर्शियल्स को ध्यान में लगाया जाता है, एंड इट्स अ कॉमन फीचर ऑफ एफएमसीजी इंडस्ट्री, बिकॉज वहाँ पे टच पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, एंड इट्स नॉट अ प्रोमिनेंट चैनल। क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में देखोगे एक सिंपल एक थंब रूल होता है कि कोई कंपनी कैसे डिसाइड करती है कि मेरे को वहां पे कौन सा बोर्ड लगाना है। आप कंपनी की जैसे सोचो, हमेशा कंपनी देखेगी कि मेरे को इस पर्टिकुलर टच पॉइंट से कितना बिजनेस आ रहा है मंथ ऑन मंथ और एनुअली। अब एफएमसीजी कंपनी का पर्सपेक्टिव देखो, आप एक रिटेलर 1,000 आइटम्स बेचता है, ठीक है, लेट्स से आप हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, आपके 5-7 आइटम्स है, लेकिन उस 1,000 आइटम में से भी 5-7 आइटम्स आपका ओवरऑल, अगर रिटेलर साल में 1 करोड़ रुपए का बिजनेस करता है,
तो आपके लिए वो हो सकता है 1 लाख रुपए से ज्यादा बिजनेस नहीं करता होगा, क्योंकि ज्यादातर 50-60% तो ग्रोसरीज में करता है और बाकी भी जो 30-40% बचा है उसमें भी बहुत सारी रेंज ऑफ आइटम है। तो आपका बिजनेस तो साल भर में मुश्किल से 50,000 1 लाख रुपए का बिजनेस करता है, उसमें से आपके 10-12%, 15% मार्जिन है। आपका सारे प्रोडक्शन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट हटा करके, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट हटा करके, फिर बीच में जो मिडल मैन की जो चेन है, ये होलसेलर हैं या फिर जो CFA एजेंट्स हैं, उन सबके मार्जिन हटा करके और रिटेलर के मार्जिन हटा करके 15%, 20% आपके मार्जिन बनते हैं। साल भर में अगर उसने 1 लाख रुपए का बेचा है सामान, 15-20% के आपके मार्जिन बने एक शॉप के ऊपर, 20,000 रुपए का अपने एक शॉप पे मार्जिन बनाए, तो वो आपकी बहुत क्रीम शॉप होगी जिस शॉप पे आप 20,000 रुपए का मार्जिन बना पा रहे हो। वरना FMCG का एक टिपिकल रिटेलर शॉप पे मार्जिन बहुत कम होता है, 5,000, 10,000 रुपए। तो वहां पे वो GSB लगा ही नहीं सकते। साल भर में अगर आप एक शॉप के ऊपर 15-20,000 रुपए का मार्जिन बना रहे हो और उस पर 20,000 अगर आप बोर्ड टांग दोगे तो कोई सेंस ही नहीं बनी, फिर तो आप कुछ बिजनेस ही नहीं कर रहे वो पूरा साल, उसमें आप जबरदस्ती एफर्ट मारे जा रहे हो। ये सोच करके उस टच पॉइंट के ऊपर मैं कितना बिजनेस कर रहा हूँ, उससे कितना मेरा साल भर में पैसा बन रहा है, उसके बेसिस पे स्पेंड प्लान किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग पैसा लगाया जाता है उस टच पॉइंट की ब्रांडिंग के ऊपर। ऑटोमोबाइल सेक्टर देखो आप, एक एक स्टोर के ऊपर साल साल भर में 50-50 करोड़ की सेल निकल जाती है, और उसी वजह से एक एक ऑटोमोबाइल शॉप के साइनेजेस आप देख लो, देयर यू विल नेवर फाइंड एनी कॉम्प्रोमाइज इन देयर। अगर ऑटोमोबाइल डीलर का फसाड लेट्स से 50 फीट लंबा फसाड होगा, एंड अगर चारों साइड अमित, हाँ जी, इंटरनेट का इश्यू है फिर से। हेलो अमित, नहीं बीच में आवाज टूट रही है आपकी अमित, पता नहीं मुझे टूट रही है, सबको टूट रही है। नहीं, मैं लास्ट का मैसेज इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल के ऊपर क्लैडिंग होगी और सारे के सारे के ऊपर साइन ब्रांडिंग होगी। So you are getting this. I think we have made this point pretty well कि किस तरह से डिफाइन किया जाता है कि फ्लेक्स बोर्ड लगाएंगे या किस तरह का बोर्ड लगाएंगे, राइट? गाइस ऑडिबल हूं ना मैं? नहीं, हेलो हेलो